Good afternoon, everyone. I welcome you all on this show. It's exactly 3:30. I can see people were waiting for me to join and start immediately. I know time is very important for everyone. मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वेबिनार पे and before moving ahead, I'd like to introduce myself. My name is Alok. I'm father of two sons, 9 trees, husband to a superwoman. I'm an engineer, entrepreneur, traveler, author at heart, and a parenting expert for more than a decade now. And I'm on a mission to help hundreds of thousands of parents like you to bring the best versions of their children. And today, the topic which I'm going to cover is how to create a wow bonding with you and your child. Right? So, I'm the host for the show today, and the name of the show is Parenting Mastermind Program. Right? Since you have registered and you know how important it is for you to be here, right? I thank you from the core of my heart because you are the parents who are believing in the system that parenting is a particular thing wherein you need to focus on. I thank you for being live and conscious. I always say you are the parents who are live and conscious because you are going to bring that change in your children, right? So thank you again. I welcome you all on this particular show, right? Now, moving forward, I'll tell you that I'm going to create so many things. I'm going to give you so many surprises in this event, in this show, if you watch till the end. Because at every certain interval, I'm going to give you something, teach you something, and both the things are going simultaneously, right? मैं आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करता रहूंगा, बातचीत करता रहूंगा, तभी हमारा बातचीत का मॉडल बस यही है कि आप हमारे साथ चैट कर सकते हैं, राइट? नाउ okay. Now, before moving ahead, I'd like to show you a video to start with and to warm up, right? So, are you guys ready? Are you guys ready for this show? Yeah. If you are, please type in the chat message that you are ready. You are really geared up to know what things I'm going to talk about. Just type in the chat box because see, the more you interact, the more you keep interacting with me, the more things would be understood and you will be lively in this particular show. It's not like a lecture. I'm not going to give you a lecture anymore, right? I'm going to tell you the real things, the practical things which we are facing as a parents, right? Yes, I'm ready. Yes, ready. Very good. I think you people are really, see, what I say is this webinar is free. Understand? This webinar is free. You have not paid anything for this webinar, but your time is not free. Understand, parents? Your time is not free. Your time is very precious. And I want you to make the best out of this 90 minutes, which I have requested you. Okay. Thank you very much. I can see lots of messages. See, I cannot reply each and every message because the flow interrupts. And these things are like very interactive and I want to keep you interacting with me on this particular show. I just keep on seeing on the screen and keep on moving, right? So here I go. I'll show you something which is very interesting and it will touch your heart. Just a second. I'll just play that video for you and see.
So parents, tell me, how did you like this video? कैसा लगा आपको वीडियो? Just type good, liked, whatever you like. यदि आपको अच्छा लगा आप इसमें टाइप कीजिए गुड. Yes, I can see people typing in. Yeah. So अब एक चीज बताइए, क्या आपको लगा कि आपके अंदर का वो पेरेंट कहीं इस फॉर्म में है आपके अंदर जिंदा? आप भी एक पेरेंट है कहीं ना कहीं. क्या हम इसको रिलेट कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ? एक चिड़िया अपने बच्चों के अंडे से लेकर के उसको बड़ा कर रही है, बर्फ में अपने आप को उसने ढक लिया अपने बच्चों के ऊपर से, बर्फ उसके ऊपर है, राइट? इससे क्या समझ में आता है? हम भी तो वही पेरेंट है ना, हम भी वही करते हैं अपने बच्चों के लिए. ये हमसे रिजेंबल करता है, बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है, राइट? ओके, ये बस ये बताने के लिए था कि हमारे मन में कहीं ना कहीं एक वो ऐसा पेरेंट छुपा हुआ है जो हम बताना चाहते हैं. हम करते सब कुछ है लेकिन शायद हम वो चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. हम अपने मन में रखते हैं, हम अपने बच्चों के लिए हम जुड़ना चाहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनको फीड करना चाहते हैं, उनको बढ़ाना चाहते हैं, और वो चीज हमारे मन में है. इस चिड़िया ने बहुत सुंदर तरीके से वो चीज दिखाया है. ओके, so before moving ahead, I'd like you to just type in from the city you have logged in. See, if you, I always say keep interacting with me to make this session more and more interesting. So I'd request you to kindly type in the city from where you are logged in. Yeah. So you'll get lots of surprises, parents. You believe me, I always tell that मैं ज्ञान देने नहीं आया हूं, right? Yeah, I can see people tapping in from different cities of India. Yeah, if I name a person from Lucknow, Ghaziabad, Mangalore, New Delhi, Pune, Mumbai. So I think the number and the list is bigger. I don't want to read that app. मेरा पर्पस क्या है? मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं देने वाला हूं. मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो हम एज ए पेरेंट करते रहे हैं. बहुत चीज करते हैं हम, लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम यदि सुधार लें तो हमारे बच्चों के साथ जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि हमारी जिंदगी खुशियों से भरी होगी. ये बहुत सारे पेरेंट्स का ये पेन है. बहुत सारे नहीं, मैं तो कहता हूँ ऑलमोस्ट सारे पेरेंट्स का ये पेन है, स्पेशली जब बच्चे बड़े हो जाते हैं. उनको अपने साथ मिला के रखना, उनके साथ खुशियां बांटना, दुख बांटना. नहीं तो हर कोई आज की डेट में एक इंडिपेंडेंट यूनिट बना हुआ है. उसको अपने काम से मतलब है, अपने मोबाइल से मतलब है, अपनी स्कूल से मतलब है. आपसे दिल का रिश्ता नहीं बन पा रहा. So this is what I'm going to talk about in this particular session, right? Now I'll ask you one more question before moving ahead. आप अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं? How much do you love your child? आप कहेंगे बहुत प्यार करते हैं, but can you quantify that? Yes, can you quantify that love for your child? और आपके लिए आपके बच्चे के प्रति जो प्यार है वो है क्या? आखिर में क्या चाहते हैं आप? प्यार दिखा करके क्या करना चाहते हैं? पहला, और दूसरा, आप कैसे प्यार दिखाते हैं? दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको बताता हूं, हम एज ए पेरेंट्स, क्योंकि ये हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम बच्चों को हमने जन्म दिया है तो हमें उसकी जिम्मेदारी लेनी है, उसका खाना, कपड़ा, पढ़ाई. सो वी डू एवरीथिंग फॉर हिम और हर, राइट? एक बच्चे के लिए कुछ भी. हम अपने लव को, अपने प्यार को क्वांटिफाई नहीं कर सकते. हम क्या कर सकते हैं और हम क्या करते हैं? हम उसको जस्टिफाई करते हैं. कैसे जस्टिफाई करते हैं? वन, बाय वर्च्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, द नीड. क्योंकि बच्चा है, उसको खाना, कपड़ा, चीजें देनी पड़ेगी. व्हेन द चाइल्ड ग्रोज अप, व्हाट वी डू, वी ट्राई टू सेंड देम टू द बेस्ट ऑफ द स्कूल्स, राइट, कॉलेजेस. हम उनको कपड़े, खिलौने, सब कुछ खरीद के देते हैं. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस आवर लव थ्रू फिजियोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आउट से. दोनों चीजें हम चीजें खरीद के देते हैं और सोचते हैं कि हमारा काम खत्म हो गया, राइट? हम स्कूल में एडमिशन करा के सोचते हैं कि हमने तो अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया और हमारा काम खत्म हो गया. बट क्या ऐसा होता है क्या? हमारा काम खत्म नहीं होता पेरेंट्स. मैं ये कहता हूं कि पेरेंटिंग एक जर्नी है
उस जर्नी को आपने चूज किया है, तो उसको अच्छे से अच्छे बनाएं ताकि आपकी वो जर्नी खुशहाल रहे और आपके बच्चे तक जो चीजें आप पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचा पाए। करेक्ट? तो ये बहुत ही संजीदा मामला है। यदि आप इसको सही तरीके से समझ के करते हैं तो आपकी जिंदगी खुशियों से भरी होगी, नहीं तो हर मुकाम पे हर समय आप स्ट्रगल करते रहते हैं। और आज के डेट में पेरेंट्स का सबसे बड़ा यही चैलेंज है कि वो हमेशा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। एम आई राइट? इफ आई एम मेकिंग सेंस प्लीज टाइप इन यस। मैं जो ये बातें कह रहा हूं ये कहीं दूसरी दुनिया से नहीं आई हुई हैं। मैं भी एक फादर हूं और मैं भी इन सब चीजों को महसूस करता हूं। राइट? तो मैं बताना चाहता हूं कि ये चीजें कैसे हो रही हैं और इसमें आप क्या करेंगे कि आप अपने बच्चे के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाएंगे, जो दोनों की खुशियां, दोनों की जो जिंदगी है खुशियों से भरी होगी। Yes, I can say lots of yes. Thank you very much for the response. Yeah, very good. Now, मैं ना इस पर्टिकुलर चीज को एक क्वेश्चनेयर फॉर्मेट में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। करेक्ट? तो हम जो पेरेंटिंग करते हैं, हमने तो बता दिया कि हमने सामान खरीद लिया, बच्चे को सामान दे दिया। राइट? क्या हमें पता है कि वो चीजें जो हम कर रहे हैं वो गलत है कि सही है बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या उसने जो चीजें डिमांड करी या जो हमने चीजें समझ के की अपने हिसाब से, क्या वो सही है गलत है? हमें नहीं पता होता। राइट? हमें नहीं पता होता कि वो चीजें जो हम कर रहे हैं वो गलत है कि सही है। राइट? तो जैसा मैंने आपको बताया है कि मेरा जो प्रॉमिस है बाय एंड ऑफ दिस प्रोग्राम, आप अपने बच्चों के साथ एक ऐसा बॉन्डिंग बना पाएंगे या जो बॉन्डिंग यदि है उसको आप अपग्रेड कर पाएंगे जिसमें आपकी जिंदगी खुशियों से और भरी होगी। राइट? तो मैं हमेशा ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि कितना आप प्यार करते हैं और हम फिजियोलॉजिकल चीजों से उसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो चीजें गलत है या सही है। राइट? हम क्या कहते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि चीजें सही है बाय डिफॉल्ट। क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं, हमारा बच्चा है। बिल्कुल सही बात है, हमारा बच्चा है, हम कर रहे हैं, तभी तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ सही है। और हम नोइंगली अनोइंगली बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जिसका कुछ का पॉजिटिव इफेक्ट होता है, कुछ का नेगेटिव इफेक्ट होता है बच्चे के ऊपर, जो हमें नहीं पता होता। राइट? मैं अब आपसे पूछता हूं और मैं हमेशा कहता हूं कि आपसे बड़ा शुभचिंतक आपके बच्चे का तो कोई हो ही नहीं सकता। कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। नोबडी कैन रिप्लेस यू व्हेन इट कम्स for the well-wishing of your child. But I say you are the best well-wisher of your child emotionally, not professionally. Right? By virtue of emotion, हम कहते हैं चूंकि हमारा बच्चा है तो हम उसको बहुत प्यार करते हैं और हमसे बड़ा वेल-विशर कोई नहीं होगा। लेकिन क्या हम प्रोफेशनली ट्रेंड हैं इसके लिए? एक बार जरा सोचिए, नहीं ट्रेंड है। एक सिंपल क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं, आप किसने आपको सर्टिफाई किया कि आप पेरेंट बन सकते हैं? बताइए। हु क्वालिफाइड और सर्टिफाइड यू टू बी अ पेरेंट? नोबडी। हाउ इट हैपेंस इज वी ग्रो biologically, and by the virtue of biology, at a time, because of some certain social norms, we get married and we produce babies. हम पेरेंट बन जाते हैं, राइट? बिना जाने हुए। अब मैं आपसे एक चीज बताता हूं कि कहीं भी आपको जाना होता है, आप किसी सफर की तैयारी करते हैं, कहीं जाना है, आपने एक शहर से दूसरे शहर जाना, आप क्या करते हैं? आप टिकट बुक करते हैं, फ्लाइट हो, ट्रेन हो, बस हो, गाड़ी से जानी है अपनी, आप प्लान करते हैं, यू प्लान दैट जर्नी, राइट? उसके हिसाब से आप टिकटिंग करते हैं, गाड़ी में फ्यूल भराते हैं, खाने पीने का इंतजाम करते हैं, होटल बुकिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। क्या आप पेरेंट बनने के पहले कुछ इस तरह चीजें सोचते हैं कि पेरेंट बनने के बाद मुझे क्या करना है? नहीं सोचते हैं। एंड हियर इज द प्रॉब्लम, वी स्टार्ट फ्रॉम समथिंग वेयर वी डोंट नो एनीथिंग। एम आई मेकिंग सेंस पेरेंट्स? टेल मी। राइट? तो हम एक ऐसी जर्नी पे जाना चाहते हैं जहां पे बहुत कुछ है लेकिन हमने कुछ सीखा नहीं है, बट हम उसको ग्रांटेड लेते हैं। अभी हमें तो पता है भाई, हमारे मम्मी पापा ने हमें ऐसा पाला है, तो मुझे पता है कि बच्चा जब जन्म लेगा उसके बाद हमें ये करना है, हमें ये करना है और हम बच्चे को पाल लेंगे। इज इट दैट? आई डोंट थिंक सो। इट इज लिमिटेड टू दैट। ओके, सो मैं हमेशा कहता हूं, एंड मैं आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरीबडी एंड एनीबडी सेइंग दैट you are
अ प्रोफेशनल, आपने उसमें समय लगाया, यू स्टडीड फॉर 4 years 5 years 6 years, you gained some experience, right? And then you are certified and qualified. आप सरकारी जॉब में है तो आप एक एग्जाम पास करते हैं, आपका इंटरव्यू होता है, somebody is there to certify and judge you saying that okay you are now eligible for this particular role. आप कॉलेज में पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मेडिकल, उसका एक करिकुलम बनाया, 4 साल 6 साल जो भी है आप टाइम लगाते हैं, लॉयर बनते हैं, 6 साल पढ़ाई करते हैं, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ओके नाउ यू आर गुड टू गो. बट व्हाट अबाउट पेरेंटिंग? ना आपने किसी से सीखा, ना आपको किसी ने सर्टिफिकेट दिया और पेरेंट बने. आप एक नया जीवन लेकर के आए हैं, एक नया जीवन, और आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है. सो हाउ इट्स नॉट जस्टिफाइड पेरेंट्स, दिस नॉट जस्टिफाइड. ओके, सो दिस इज व्हाट आई टेंड टू से. तो हम करते क्या है, हमें क्या करना चाहिए ये तो हम करते हैं. सो आई आस्क यू, व्हाट इज द राइट टाइम टू लर्न पेरेंटिंग? द राइट टाइम ऑफ लर्निंग इज एनी टाइम. आउट से मैं हमेशा कहता हूं सीखने की कोई उम्र नहीं होती. बच्चा जन्म से लेकर के और जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक हम सीखते रहते हैं, चाहे किसी भी एज ग्रुप के हों. सो देयर इज नो टाइम, राइट टाइम टू लर्न, बट देयर शुड बी एन आइडियल टाइम टू लर्न. Right? Now, what I say is, the moment you think of being a parent in your mind, you are then and there a parent. So, your parenting journey starts from your mind. Make it a note. आप समझिए इस चीज को. आप पेरेंट कब बनते हैं? आप पेरेंट तब नहीं बनते हैं जब आप फिजिकली पेरेंट बनते हैं. सबसे पहले the moment you start thinking of a parent, you become a parent, right? Then you become a parent at heart, right? And later on you become a physical parent, right? So, the right time of learning parenting would be what? Before you get into the parenting, actual parenting. I would say the moment you start thinking of being a parent, you start learning from then only. Then only you will be able to teach your child in a way wherein he grows and your journey is happier, right? मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा. I'll give you a small example. You must have seen all these examples in your life as well. अपने घर वगैरह में देखा होगा. मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूं अभिमन्यु का. आपने महाभारत की कहानी पढ़ी होगी, उसमें आपने सुना होगा कि अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को कहानी सुनाते हैं चक्रव्यूह भेदने की, राइट? और उस समय अभिमन्यु अपने माँ के गर्भ में होते हैं, और जब अर्जुन सिखा रहे होते हैं, कहानी सुना रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, तो 7 दरवाजे तक तोड़ने की कहानी सुभद्रा सुनती हैं, जगी होती हैं, और उनके माध्यम से अभिमन्यु ने सुना होता है. 8वें के पहले उनको नींद आ जाती है और अभिमन्यु नहीं सुन पाता. एंड एक्चुअली जब वो चक्रव्यूह में फंसता है तो 8वें दरवाजे पे वो मारा जाता है. What point I want to make is, the moment a child is in a womb, he starts learning, right? वो पौधों की तरह है. हम पौधे का एग्जाम्पल लेते हैं, हम बीज डालते हैं जमीन के अंदर, हमें नहीं पता होता कि जमीन के अंदर क्या होता है. हमने जमीन में बीज डाला, पानी दिया, उसको सूर्य की रोशनी मिली, वार्मथ मिला, और वो नीचे नीचे ग्रो होना शुरू होता है. हम तब देख पाते हैं जब वो जमीन के ऊपर आ जाता है. इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक हमें दिखा नहीं उसके अंदर कुछ हो नहीं रहा, राइट? सो सिमिलरली इवन द चाइल्ड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम डे 0. फ्रॉम द मोमेंट द मदर हैज कंसीव्ड द चाइल्ड, दैट सेल स्टार्ट्स ग्रोइंग, दैट सेल स्टार्ट्स लर्निंग. सेल बनना शुरू होता है. साइंस की भाषा में यदि मैं बताऊं तो कोशिकाएं जो होती हैं, सेल्स, एक एक सेल करके टिश्यूज बनते हैं, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, सारी चीजें डेवलप होती है एक मदर के वोम में, राइट? आई थिंक पीपल कैन रिलेट टू इट. ओके, एंड हाउ दिस इज हाउ चाइल्ड स्टार्ट लर्निंग. तो आप देखेंगे एग्जाम्पल भी हमारी माँ दादी लोग बोलते हो कि यदि कोई स्त्री गर्भवती है, शी इज प्रेग्नेंट, उनको ये खिलाओ, ये गाने सुनाओ, या ये भजन सुनाओ, ये धार्मिक किताबें पढ़ाओ. आखिर इन सब चीजों का फर्क पड़ता है, राइट? और ये फर्क साइंटिफिकली पड़ रहा है. इसके पीछे हिस्ट्री भी है, आपको मैंने बताया, हिस्ट्री का एग्जांपल दिया, और साइंस भी है. यू गो टू एनी डॉक्टर, दे विल टेल यू द सेम थिंग, करेक्ट? सो डॉक्टर आपके लिए हर कुछ नहीं करेंगे, आपको अपने लिए कुछ हमेशा से करना पड़ेगा, राइट? सो व्हाट आई से इज, देयर कुड बी एन नंबर ऑफ थिंग्स, बट हमारे लिए क्या होता है कि हमारा जब बच्चा जन्म लेता है, करेक्ट, तो दैट चाइल्ड इज अ नो नेशन, नो रिलीजन, नो कास्ट, नो लैंग्वेज आइडेंटिटी. जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको कुछ नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है. ही इज अ नो नेशन, नो रिलीजन, नो कास्ट, नो लैंग्वेज. उसको कुछ नहीं पता जब वो जन्म लेता है.
what we do, we as a parents tag them socially first. तुम इंडियन हो, तुम इंडोनेशियन हो, तुम कैनेडियन हो, तुम जर्मन हो, तुम फ्रेंच हो, whatever, राइट? हम उसको टैगिंग कर देते हैं, तुम इस नेशन के हो. फिर हम उसकी टैगिंग कर देते हैं, तुम इस रिलीजन के हो. फिर हम टैगिंग कर देते हैं, तुम इस कास्ट के हो. फिर जो लैंग्वेज हम बोलते हैं वो लैंग्वेज बच्चा अपने आप सीखना शुरू कर देता है, राइट? एम आई राइट? और उसके बाद बच्चा जो हम कर रहे होते हैं उससे सीखता है. So we as parents tag them first socially and then individually. Am I right, parents? So come on, please type in yes. I keep on speaking a lot, but I want you to give me a feedback. Is it making sense to you? Whatever I'm talking, say yes in the chat box, please. Yes. See, the more you interact with me, I'll be able to, tell you more and more things. Yeah, perfectly fine. I can see lots of yeses in the comment box, in the chat box. Yeah, that is fairly good. Yes, good. So, क्या होता है कि हमने उसको टैगिंग कर दी, हमने उसको सिखाना शुरू कर दिया, और उसके बाद जब हमने उसको गलत चीजें सिखा दी और हम खुद कहने लगते कि यार मेरा बच्चा तो ऐसा हो गया, मेरा बच्चा वैसा हो गया. So there is no problem with the child. Actually, no child is faulty. And even I say no, we as parents are faulty. Reason because the systems. एक पेरेंट की मैं बात करूं तो पेरेंट भी कभी फॉल्टी नहीं होता. पेरेंट भी हमेशा चाहता है कि बच्चे की अच्छाई हो. But since the system which we have adopted is wrong, so we become faulty as parents. Am I right? So यदि हम फॉल्टी सिस्टम में है तो हमें क्या करना पड़ेगा? द नेक्स्ट स्टेप इज बी लर्निंग. हमें उन स्टेप्स को लर्न करना है जो गलत है, और जो चीजें हमने पहले सीखी हुई हैं जो गलत है उसको अनलर्न करना है. हमें उनको छोड़ना होगा, उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही है, राइट? फिर हमें नई चीजें सीखनी है, और ये एक साइकिल है जिसमें आपको सीखना है और समझना है, फिर जो गलत चीजें हैं उसको फिर से आपको हटाना है, नई चीजें सीखनी है. सो दिस इज हाउ आई टेक इट. You have to go in a circle of learning, unlearning, relearning, right? So this is what is the next step you have to do. Okay. Now, before moving ahead, I want to show you another video. Just give me a second. I'll show you another video. Stay tuned and keep watching. You're going to get lots of insights, parents. क्या कर रहे हो फोन पर? ये किसका इंस्टा देखकर ये इतना स्माइल कर रही हो? जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना, तो हम गांव में पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई किया करते थे. लाइट वाइट नहीं थी हमारे यहाँ. बचपन से ही पैसे कमाकर पूरे परिवार को संभालते थे. और तुम खुद को नहीं संभाल सकती. हमारे घर से गांव में नदी आती थी बीच में. गॉड, इट वाज सो टफ. तो वर्दी उतारते थे, स्कूल की वर्दी, लुक एट योर लाइफ. और बस्ता वो ऐसे पकड़ के चलते थे. एवरीथिंग इज गिवन टू यू ऑल ऑन अ प्लेटर. या ब्लडी. जब तुम हमारी उम्र के हो जाओगे ना, तब तुम ये समझोगे ये सब झूठ है बेटा. ये झूठ मेरे पेरेंट्स ने मुझे भी तो बोला था यार. और अब हम रिसाइकिल करके तुम्हें बोल रहे हैं. अगर मेरे जमाने में मोबाइल होता तो मैं भी मोबाइल पे होती. एक्चुअली अब भी हूँ. इंस्टाग्राम अकाउंट हमने भी खोला. व्हाट्सएप पे मैं तुमको कितना सारा गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजती हूँ. और कभी कभी जब तुम उदास दिखती हो तो बहुत बड़ी गलती कर देती हो. तुमने मना किया है, लेकिन फिर भी तुमसे डायरेक्टली पूछ लेता हूँ कि बेटा कैसे हो, और तुम कह देती हो कि ठीक हूँ पापा. मेरा दिल नहीं मानता दैट यू आर ओके, है ना? तुम्हारी लाइफ आसान नहीं है. खराब दिन, खराब मार्क्स, खराब ब्रेकअप्स. कभी कभी तो लगता होगा कि जिंदगी ही खराब है ना. So sometimes you may think, will it even matter if you give up and go away? does anyone even care? देखो बेटा, हम तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं. बट हम पेरेंट्स हैं. इस जनरेशन गैप को एकदम समझते हैं. हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कभी कभी समझ ही नहीं पाते होंगे, विलन जैसे लगते होंगे. कभी कभी उन्हें तुमसे बात करने के लिए सही शब्द नहीं मिलते. कभी कभी कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो प्यार नहीं दिखा पाते, पर वो
तुम्हारी फिक्र करते हैं। And they really, really, really love you. So please, जब 3 बजे रात को तुम सो नहीं पाते, Talk to your parents. जब एग्जाम्स का प्रेशर तुम नहीं ले पाते हो, जब आपको ये लगे ना कि वो सैड वाले कोट्स जो होते हैं वो इंस्टा पे शेयर करोगे तो दैट्स द ओनली वे टू मेक योरसेल्फ हर्ट। प्यार में अगर दिल टूटा हो तो talk to them. You can just write them a little chit. थोड़ा awkward जरूर होगा, पर बात करके तो देखो। और अगर तुम्हारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे पेरेंट्स ही हैं, तब तो डेफिनेटली टॉक टू देम। मतलब अपने BFF से पहले मन भर के बिचिंग कर लो, उसके बाद और हाँ, ऐसे मौके होंगे जब पेरेंट्स से बात करना इम्पॉसिबल लगेगा। और हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बात करने के लिए पेरेंट्स नहीं भी होते हैं। even then कोई ना कोई होगा जो आपकी बात सुनना चाहता होगा। you do not need to feel alone. अपने दिल की बात किसी ना किसी से जरूर कीजिए, It may be a friend. A stranger. और अ नंबर। Talk to them. बात करो। Talk to someone. Please. ठीक है बेटा। So parents, tell me, did it relate somewhere to you? आपको लगा कि कहीं ना कहीं इसमें आपकी कहानी छुपी है? किसी के पास पेरेंट्स हैं तो बच्चे नहीं है, किसी के पास बच्चे हैं तो पेरेंट्स नहीं है। यही दुनिया है। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता, राइट? हमारे इस पेरेंटिंग की ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले मुझे ये बताइए कि हैव यू कनेक्टेड इट? डिड यू फील समथिंग दैट यू सिमिलर थिंग्स यू वांटेड टू टेल योर चिल्ड्रन? Can you correlate with it? Say yes. Say yes if you liked it, and if you can correlate with the situations and the feelings which you are having as of now. Can you correlate to it? Yeah. Right. Thank you. Thank you. Thank you for responding. Okay. So, my point again. When you see this kind of things, what do you feel? आपको क्या लगता है? आपको ये लगता है ना कि कहीं ना कहीं मेरे मन में भी कुछ है और मैं तो अपने बच्चे के लिए इतना सब कुछ करना चाहता हूं और करता भी हूं, फिर भी ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? राइट? ये क्वेश्चन हमेशा दिमाग में आता है कि मैंने तो अपने बच्चे के लिए हमेशा भलाई सोची है, उसके लिए सब कुछ करता हूं, फिर भी ये चीजें मेरे हिसाब से नहीं है, या जो मैं सोचता हूं बच्चे को ऐसा सोचे वो नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण है, और ये कारण वही है क्योंकि जो चीजें हमने एज ए बिलीफ सिस्टम समझ रखा है कि ऐसे ही चीजें होती है, वो ऐसा नहीं हो रहा, तो वो कनेक्शन हम बना ही नहीं पा रहे, और इसकी वजह से जो चीज जो हम आउटपुट चाहते हैं वो नहीं आता। करेक्ट? सो आई विल टेल यू व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी डू एज ए पेरेंट एंड व्हिच इज रॉन्ग। आई विल गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स। राइट? जब हम कहते हैं, जब हमारा बच्चा रोता हुआ आता है हमारे पास, हम क्या कहते हैं? स्टॉप क्राइंग, मत रो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। करेक्ट? हम यही कहते हैं ना। बच्चा यदि रोता हुआ आता है और उसके बाद हम उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो इसके बोलने के पहले ही हम कहते हैं कि क्यों रो रहे हो, चुप हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सी व्हाट हैपेंस इज, हम जो कहते हैं उसका बहुत डिफरेंट तरीके से बच्चों के दिमाग पे असर पड़ता है। ये साइकोलॉजी है। राइट? बच्चे का एक सबकॉन्शियस माइंड है और एक कॉन्शियस माइंड है, हर किसी का होता है। बच्चे के ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे हम कहते हैं स्टॉप क्राइंग, मत रो, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसके सबकॉन्शियस में एक चीज जाती है जो कहती है कि यार ये बंदा तो मुझे मना कर रहा है। सी क्राइंग इज ए नेचुरल फिनोमिना। करेक्ट? बच्चे रो रहे हैं तो नेचुरली रो रहे हैं आउट ऑफ सर्टेन फीलिंग्स, तो उनको उस फीलिंग्स को बाहर आने दीजिए। ये मत कहिए मत रो। उससे क्या होगा ना, द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग डोंट वरी और स्टॉप क्राइंग, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, तो उसमें क्या होता है, एक रिपल्सिव एक्शन क्रिएट होता है। उनको लगता है कि दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू शेयर माई फीलिंग्स। करेक्ट? तो धीरे धीरे आपसे रिपेल होना शुरू हो जाते हैं, दूर जाना शुरू हो जाते हैं। इंस्टेड आपको क्या कहना चाहिए कि टेल मी व्हाट इज बॉदरिंग यू, क्या परेशानी है बच्चा, बताओ, मैं कोशिश करता हूं या करती हूं, मैं इसको सॉल्व करूंगी। किस रीजन से तुम रो रहे हो? I'm here. I'm going to take care of it. Try to find a reason. Don't say this particular word that stop crying or don't cry. So this is where you are going to make a difference, right?
I'll give you another example. If somebody like आपको अपना कंसर्न शो करना पड़ता है, करते हैं कई बार, तो हम कहते हैं कि whatever I do it for you. मैं जो तो कर रहा हूं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं, और मेरा है कौन, तुम ही तो मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारे लिए तो करूंगा. इसमें कोई गलत नहीं है एज ए पेरेंट ये सेंटेंस बोलना, लेकिन आपको ये समझना है कि इसका उस बच्चे के दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है. आपके दिमाग में ये चीजें नहीं है कि आप उनका बुरा करना चाहते हो, लेकिन आपका जो मैसेज जा रहा है ना वो गलत तरीके से जा रहा है. राइट? अगेन द चाइल्ड सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट थिंकिंग वेदर आई एम अ बर्डन, मैं बोझ लग रहा हूं क्या, जो बार बार मेरे मम्मी पापा कहते हैं मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा हूं. राइट? सो द मोमेंट इट स्टार्ट हैपनिंग, फिर से बच्चा आपसे दिल की दूरी उसकी बढ़ती जाती है. वो कहेगा कुछ नहीं, लेकिन वो आपसे इंटरैक्ट भी नहीं करेगा, आपके पास आएगा भी नहीं. तो क्या कहना चाहिए हमें? यदि आपको अपना कंसर्न ही जताना है तो आपको सीधे सीधे सिंपल शब्दों में कहना है, हम तुम्हें प्यार करते हैं, वी डू एवरीथिंग बिकॉज वी लव यू. राइट? कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है. उनको आप प्यार दिखाएंगे, उनको प्यार समझ में आता है. राइट? तो बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि मैं आपके लिए ये कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं. बस उनको प्यार दिखाइए, थिंग्स विल हैपन. वन मोर एग्जांपल आई टेल यू. जब हमारा बच्चा कुछ अच्छा करता है, कुछ अचीव करता है, क्लास में पढ़ाई में अच्छा किया, स्पोर्ट्स में अच्छा करा, म्यूजिक में अच्छा, किसी चीज में जब भी अच्छा करता है तो हम उसको शाबाशी देते हैं, वी कॉम्प्लीमेंट देम. राइट? बट मोस्ट ऑफ अस एज ए पेरेंट हम क्या कहते हैं, यू डिड ग्रेट, बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया, लेकिन और अच्छा कर सकते थे. ये जो लेकिन शब्द है ना, लेकिन, बट, ये पूरे सिस्टम की ऐसी तैसी कर देता है. मतलब आप बच्चे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको बधाई दे रहे हैं. क्यों बधाई दे रहे हैं? क्योंकि आप उसको मोटिवेट करना चाहते हैं. राइट? लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट स्पीकिंग विथ अ क्लॉज व्हिच स्टार्ट्स विद बट, यू स्पॉइल द एंटायर कॉम्प्लीमेंट. बच्चे के दिमाग में ये जाता है, यार मैंने तो इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ किया, क्या कुछ रह गया क्या मेरे से? मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं कुछ और अच्छा हो सकता था. राइट? देखिए, अच्छा होने का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जब यहां पे हम बच्चे की मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, हम बच्चे को उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, तो आपको इस तरीके से बोलना चाहिए, यू डिड वेल, तुमने बहुत अच्छा बेटा किया, और मेरे को पूरा विश्वास है, मैं चैलेंज लगा के कह सकता हूं और अच्छा करोगे. डोंट यूज दैट वर्ड बट लेकिन नहीं यूज करना है. राइट? एम आई क्लियर? एम आई मेकिंग सेंस? रीजन बीइंग, देखिए ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं आज के डेट में, और मैं आप लोगों को एज ए पेरेंट यही छोटी छोटी चीजें जो इतने बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती हैं, आप समझ नहीं सकते, उस चीज को समझाना चाहता हूं कि छोटी चीजें हैं. आप कहेंगे इसमें क्या ज्यादा ज्ञान है? इसमें ज्ञान बस यही है कि आपके बच्चे के दिमाग पे क्या चीजें कैसे असर कर रही हैं, वो चीजें आपको समझना है. यदि आप ये समझ गए, फिर आपकी जिंदगी इतनी खुशहाल होगी कि आप समझ नहीं सकते. एंड दिस इज वेयर माय निश लाइज. राइट? मैं आपको इन्हीं से छोटी छोटी चीजों की वजह से मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने बच्चे के साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं. राइट? ओके, नाउ बिफोर मूविंग अहेड, I'll tell you again, I keep on saying that if you stay till the end, you will get lots of surprises. Today I have planned in such a way that आप थक जाएंगे और मैं देता रहूंगा, खत्म नहीं होगा. ऐसी चीज है, और आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो शायद आपने कभी सोची नहीं हो कि ऐसा भी होता है क्या. राइट? नाउ बिफोर मूविंग अहेड, one more video for you. Just a second, I'll play it for you and you'll see how it happens. Dear parents, Dear parents, मम्मी, पापा, I have something to say to you. बहुत टाइम से सोच रहा हूँ, आज सोचा कह ही देता हूँ. भले ही समझने के लिए थोड़ा वक्त ले लेना, पर आज इत्मीनान से बैठकर मेरी बात सुन लेना. आपके सामने खुश रहने की एक्टिंग अब और नहीं करेंगे. पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट भी मैं अपने आप को कितना ही करूँगा. ये कोई फेज नहीं, ये मेरी फीलिंग्स और इमोशंस हैं. लोग क्या कहेंगे से इन भावनाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, मैं पूरा दिन अपने फोन पर लगी रहती हूँ. कोई सुनने के लिए मिलता ही नहीं जब सर उठाकर ऊपर देखता हूँ. अक्सर रात को 3 बजे कुछ एक अजीब सा ख्याल जगाए रखता है. कल को अगर मैं ना रहूं तो किसी को क्या फर्क पड़ता है? ऐसे में गिनती के कुछ दोस्त हैं 2-4 जिनसे मैं बात कर लेता हूँ. हमारी डांट में ही प्यार है, तो अब नहीं सुनना चाहते. कभी कभी सोचता हूँ कि काश ये ओवर थिंकिंग रोक पाता.
आप अगर एक बार सुन लीजिए तो आपके कंधे पे सर रखकर होगा। चिट्ठी लिखूं या मैसेज करके फटाफट फैमिली ग्रुप छोड़ दूं? असली बात बताओ या सब ठीक है कह के जाने दूं? सच बताया तो आप डांट कर फोन तो नहीं छीन लोगे? अपने बचपन की कठिनाइयों से हमारी प्रॉब्लम्स कंपेयर तो नहीं करोगे? क्या आप फिर से मेरी मुश्किलों को नकली कहकर नकार तो नहीं दोगे? एक बार बताने से मना किया तो क्या आप दूसरी बार पूछोगे? जानती हूँ स्टार्टिंग में थोड़ा ऑकवर्ड तो जरूर लगेगा। इस जनरेशन की प्रॉब्लम्स समझने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। बचपन में आपको भी बात नहीं सिर्फ रिस्पेक्ट करना सिखाया था। 2 आंसू बहाए तो दुनिया वीक बोलेगी बताया गया था। ये मेंटल हेल्थ की बातें तो दरअसल हमारे लिए भी नहीं है। पर आप जरा सा इंटरेस्ट दिखाओ, हम क्रैश कोर्स देने के लिए रेडी हैं। हम आपसे इन चीजों के सोल्यूशन और एडवाइस चाहते ही नहीं। पर पहला कदम उठा के कमरे की चौखट पे खटखटाओ तो सही। भले ही समझने के लिए थोड़ा वक्त ले लेना, लेकिन आज इत्मीनान से मेरी बात सुन लेना। जब मैं कहूँ मेरा मन नहीं है। और मत कहना मुझसे बेहतर तो मासी की बेटी है। सुन लेना जब किसी बेमतलब सी छोटी सी बात पे रो पड़ूं। मत कहना कि मैं तो बहुत सेंसिटिव। सुन लेना जब मैं कहूँ कुछ चीजें मुझे ट्रिगर करती हैं। और मत कहना कि इन सब के लिए अभी मेरी उम्र ही नहीं है। सुन लेना जब मैं कुछ डिसीजंस अपने लिए सेल्फिशली लेना चाहूँ। और मत कहना कि कभी आपके बारे में सोचती ही नहीं हूँ। दुनिया अपने आप में काफी मुश्किलों से भरी है और इस सब में आपकी सपोर्ट की कमी सबसे ज्यादा चुभती है। अपने घर में तो मुझे कुछ भी बोलने की आजादी होनी चाहिए। असली लड़ाई तो मेरी बाहर की दुनिया से होनी चाहिए। बहुत मुश्किल था आपसे आज ये सब कह पाना। पर ये सुनने के बाद एक बार आके हाल पूछ जाना। Hey guys, if this video encouraged you to let So parents, how did you like this video? क्या आप महसूस कर सकते हैं आपके बच्चे के मन में ऐसी कोई चीज चल रही हो? यदि आप टीनेज पेरेंट्स हैं तो बताइए। कैन यू कनेक्ट दिस वीडियो टू योर चाइल्ड्स हार्ट? अपने बच्चे कहीं एक बार जरा सोच के देखिए, क्या आपके बच्चे के मन में ऐसी कोई चीज चल रही है क्या जिसका शायद सोल्यूशन आप दे सकते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा, बच्चे ये चीज आपको बोल ही नहीं रहे। Am I making sense? Please come up. Please come up. Type in the chat box. Yes, very nice. Yeah. Good. See, मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि there are so many things going on your child's mind. वो आप तक आ ही नहीं रहा है. And this is what the problem is. जब तक वो आएगा नहीं तब तक या तो आप इतने कैपेबल हो कि बच्चे के मन के अंदर होने वाली चीजें सारे पढ़ लें, या बच्चा खुद अपने आप आके बता दे। सारी चीजें आप पढ़ नहीं सकते हैं, कोई किसी के मन के अंदर नहीं घुस सकता, राइट? लेकिन क्या हो सकता है कि यदि बच्चा खुद से ही जो समझ पा रहा है, जो फील कर रहा है, यदि वो आप तक लेके आ जाए तो आपकी जिंदगी आसान नहीं हो जाएगी। टेल मी, है ना? दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। ओके, तो मेरा जो पर्पस है ना, मेरा पर्पस इन्हीं सब चीजों से जुड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आपका बच्चा आप तक पहुंचे, करेक्ट? सो मैं ये जिस प्रोग्राम की बात कर रहा हूं, पेरेंटिंग मास्टरमाइंड प्रोग्राम की, इसमें क्या होगा? हाउ वुड योर लाइफ चेंज आफ्टर दिस प्रोग्राम? ये तो बातें हो गई, बातों से पेट नहीं भरता किसी का, करेक्ट? आपका क्या फायदा होने वाला इस प्रोग्राम से? आप एज ए फादर, मैं बताऊं, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। एज ए फादर आप अपने बच्चों के साथ छोटी छोटी चीजें शेयर कर पाएंगे जो बच्चे अपने मन में रखे होते हैं ना, बताते चाहते हैं लेकिन शायद बता नहीं पाते, या बताना चाहते हैं आप सुन नहीं पाते। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, राइट? एज ए मदर नॉर्मली मैं हमेशा कहता हूं कि जो माँ लोग होती हैं वो अपने बच्चे में हर चीज एक्सपेक्ट करती हैं। बच्चा डिसिप्लिन्ड हो, हर चीज खुद से करे, मेरे पे डिपेंडेंट ना हो, वो सब चीजें होंगी प्रोवाइडेड आप उन तक पहुंच जाओ और अपनी बात को उनके दिमाग में डाल पाओ, राइट? एंड एज ए फैमिली जब ये चीजें होने लगेंगी ना, तो एज ए फैमिली क्या होगा? आपके घर की खुशियां बढ़ जाएंगी। आई ऑलवेज से द हैप्पीनेस कोशेंट ऑफ योर फैमिली विल इंक्रीज। यू विल शेयर द लाफ्स एंड क्राइज। दुख और सुख सब किसी के घर में आते हैं। नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज अवे फ्रॉम दैट, राइट? हर किसी के परिवार में दुख और सुख
आते रहते हैं, लेकिन आप यदि परिवार की तरह मिल के रहेंगे ना तो आप उसको भी एंजॉय करेंगे एज ए यूनिट, राइट? सो दिस इज व्हाट will happen after this program. This is what I say, and I promise you that these things are gonna happen which is missing in your life today. Okay, so now as promised, I'll cover some secrets of this webinar, in which I'm going to talk about how to make your child share his or her feelings, how to convince your child, and how to balance the emotions in case of wins and defeats. These are the three major problems which normally parents come across. परेशानियों का जड़ अलग है, और हम लोग ना वो कहते हैं ना कि आइसबर्ग के टिप पे सोल्यूशन ढूंढते हैं, ऊपर ऊपर सोल्यूशन ढूंढ लिया और बात खत्म कर दी, आगे बढ़ गए, लेकिन हम उसकी जड़ तक नहीं जाते हैं. मैं आपको उस जड़ तक लेके जाना चाहता हूं आज, राइट? सो विल स्टार्ट विथ सीक्रेट नंबर 1. How to make your child share his or her honest feeling with you. Correct? What I mean by honest feeling? Honest feeling का मतलब ये हुआ कि बच्चे के मन में एक्चुअल जो हो रहा है, ये नहीं कि बच्चे, आपने पूछा बेटा मजा आ रहा है, हाँ पापा मजा आ रहा है, राइट? पढ़ाई कैसी चल रही है, हाँ पापा ठीक चल रही है. He or she should come up saying the actual thing कि नहीं पापा मुझे ये इतना तो मेरे को समझ में आ रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी हो रही है. करेक्ट? तो वो ऑनेस्ट फीलिंग शेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सो अगेन आई से साइंस ऑफ फीलिंग. व्हाई साइंस ऑफ फीलिंग? आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. सपोज यू बिलोंग टू a place in Chennai, correct? You speak Tamil or Telugu, and you come to North India, right? You are going on your roads, or you sit in a restaurant and you hear somebody talking in Tamil or Telugu, your language, particularly your language, on the other table. So you immediately look around and see, होता है कि नहीं होता है? बताइए. होता है ना? ये सब किसी के साथ होता है. Why it happens? Because we resonate. We resonate. How what do we mean by resonate? हम रिजम्बल करने लगते हैं, अरे सिमिलैरिटी ढूंढने लगते हैं. हम सिमिलैरिटी ये देखते हैं, यार वो लैंग्वेज तो मैं बोलता हूं, वो बंदा भी वही लैंग्वेज बोल रहा है, राइट? सो वी रेजोनेट एंड वी ट्राई टू even sometimes we hesitate, otherwise we normally go and so where are you from, kahan se ho, and we start talking in a language. Correct? तो ये क्या है? This is a science. Our minds work accordingly. यदि हमने अपने हिसाब से कोई ड्रेस पहना है and somebody similar to what dress we are wearing, maybe a color combination or whatever, maybe हमारे चलने का स्टाइल, हमारे बोलने का स्टाइल कुछ वैसा यदि मैच करता है ना, तो हम उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, लैंग्वेज से कनेक्ट कर पाते हैं, बॉडी लैंग्वेज से कनेक्ट कर पाते हैं. सो दैट इज द साइंस ऑफ फीलिंग. ये कनेक्शन अपने आप बनता है. इसका एक छोटा सा एग्जांपल और मैं देता हूं. आप रेडियो ट्यून इन करते हैं, राइट? रेडियो पे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे अलग अलग चैनल्स चल रहे होते हैं, ठीक है? यदि आप सोचेंगे कि मैं एक पर्टिकुलर चैनल पे आपने रेडियो लगा दिया और उसी पे सब कोई सुने, तो नहीं होता है. Unless and until people tune in the same frequency, people will not able to connect to that radio station, और उस पे जो टेलीकास्ट हो रहा है वो सुन नहीं पाएंगे, right? Am I making sense, parents? Yeah. So again, I'll give you another example of it. Suppose you are two individuals and आप दोनों मोबाइल हैं, दो इंडिविजुअल दो मोबाइल, right? I'm personating you with mobile phones, correct? You have a heart, right? The heart is the SIM card of your mobile. Got it? आपके पास heart है, उसके पास भी heart है. मोबाइल में जैसे SIM card है, वहां भी SIM card है. Now there is a network. What is that network? Network is the surrounding, the environment wherein we are connecting to each other. हम एक दूसरे से connect कर पा रहे हैं. अब क्या होता है? Suppose I talk Hindi and the other person talks, suppose Bengali, and I don't know Bengali. कैसे समझ में आएगा? If somebody talks Telugu and I don't know Telugu, how can I communicate? How can I understand what he or she is saying? Correct? तो हमारे पास मोबाइल भी है, हमारे पास सिम भी है, हमारे पास नेटवर्क भी है, but we are not able to connect. So this is what my point is. Okay. So there are a few questions coming in my chat box. I'll take all these questions later on at the end of the webinar, when I'll be doing a question answer session. So have patience. All the questions will be answered and you will be satisfied. Unless and until you are satisfied, I'm not going to go anywhere.
जब तक मैं आपके आंसर से संतुष्ट नहीं कर दूं, मैं जाने वाला नहीं हूं. डोंट वरी एट ऑल. जस्ट बी देयर and listen to it what I'm saying. I'm talking on a very sensitive issue, which is science of feeling. You have to connect your children. How you are going to do it? You have to be with them. आपको उनकी जिंदगी में घुसना पड़ेगा, तब जाकर के आप उनको कनेक्ट कर पाएंगे. You cannot just overpower them. Mind it. Am I making sense? So these are few examples which can tell you that science is the feeling is a science and you have to get into your children's life. उनके दिमाग में घुसना पड़ेगा, तभी आप उनके दिमाग के अंदर की चीजें जान पाएंगे. करेक्ट? और इसके लिए ही मैंने ये चीजें बनाई हैं. दिस प्रोग्राम इज डिजाइन्ड फॉर यू ओनली to do all these steps one by one, wherein you create that impression in your child and you start getting into. आप पहले दरवाजा खोलेंगे उसके दिमाग के, अभी तो उसने दरवाजा बंद करके रखा हुआ है. You are trying to open the door, you are not able to do it, right? So I am giving you this key wherein you go and open the key in your child's mind, and then you get into. Once you get into the child's mind, then you start seeing, yeah, what's all going in there. तभी तो आप connect कर पाएंगे. Got it? So now next question, next secret. How to convince your child? आज के डेट में बहुत बड़ा इशू है. I keep on getting questions from parents, lot of questions. मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता. मैं उसको कैसे समझाऊं? मम्मीज या पापाज, इवन ग्रैंड पेरेंट्स, दे एट टाइम्स आस्क मी, भाई क्या करूं मैं कि मेरा बच्चा मेरी बात सुने. सुनता ही नहीं है किसी की. सो अगेन दिस इज एन आर्ट ऑफ कन्विंसिंग. हाउ यू आर गोइंग टू कन्विंस योर चाइल्ड? आज की डेट में इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं. दिस डिजिटल वर्ल्ड एंड दिस वर्ल्ड ऑफ TV and ads. Sorry to say, मैंने जो एक फोटोग्राफ लगाया है, if you see that a child has a apple in his hand, one hand, and a burger in another hand. Sorry to say that कोई भी TV, कोई भी चैनल ये नहीं दिखाता कि apple is a good fruit and you should eat. Wherein सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो जंक फूड वाले हैं, वो सब एड दिखाते हैं कि भैया खाओ. बच्चा जो देखता है वो मांगता है. सीधी सी बात है. आप उसको बिल्कुल काट नहीं सकते कि टीवी नहीं देखना है. तो आपका रोल बहुत डिफरेंट हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है उसको कन्विंस करना. राइट? सो हाउ टू कन्विंस योर चाइल्ड? सो व्हाट आई से नॉर्मली, फॉर यू टू कन्विंस योर चाइल्ड, फर्स्ट यू हैव टू बी द रोल मॉडल ऑफ योर चाइल्ड. राइट? बी द चेंज यू वांट टू बी. राइट? आपको पहले करके दिखाना होगा बच्चे को. यदि आप कहेंगे कि मैं बर्गर खा रहा हूं, तुम एप्पल खा लो, तो भूल जाइए, ऐसा कभी नहीं होने वाला. वो शायद आपके डर से एक बार कर ले, पीछे जाकर के वही काम करेगा. राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसको कुछ बेनिफिट्स और कुछ डिमेरिट्स बताने पड़ेंगे कि बेटा ये खाने से नुकसान होता है, ये खाने से अच्छा होता है. लेकिन सिर्फ इतना बताने से नहीं होता है, आपको उसको करके दिखाना पड़ेगा. राइट? तो जब आप करना शुरू करेंगे तो उसके दिमाग में इंप्रेशन होगा कि हाँ, पापा या मम्मी ने कहा था और ये बात सही है, वो लोग भी तो नहीं कर रहे हैं. सो चिल्ड्रन लर्न बाय सीइंग, नॉट जस्ट बाय टेलिंग. Understand? So when it comes to convincing your child, you have to be very very particular. आज के बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, उनको कन्विंस करना आसान नहीं है. You have to give and justify your answers with facts and figures. Give examples कि मैंने कभी ये खाया था या तो मुझे पेट में दर्द हो गया. Give real. बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये हकीकत है. हकीकत में जीना, मैं हमेशा कहता हूं कि बी ओरिजिनल. बी यू, बी ओरिजिनल. आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं. आप जो हो वो हो और उसी में आपको सोल्यूशन देना है. डोंट ट्राई टू बी imposing yourself in something else wherein बच्चे को लगे कि यार तो ये तो नाटक कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं. नहीं, यदि बच्चे को लगेगा कि नाटक और दिखावा रहे तो आपकी बात कभी नहीं सुनेगा. बी यू, बी ओरिजिनल, मैं हमेशा कहता हूं. और ओरिजिनलिटी के साथ जो भी आप करेंगे ना, एक लाइन बोलेंगे बच्चे के दिमाग में जाएगा. ट्रस्ट मी, इट विल हैपन. यू विल ट्राई इट एंड इट विल हैपन. आई एम गोना डू इट फॉर यू. डोंट वरी. नाउ बिफोर गोइंग टू द थर्ड पॉइंट, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. Can you buy happiness for your children? I repeat, can you buy happiness for your children? क्या अपने बच्चों के लिए खुशियां खरीद सकते हैं आप? Tell me yes or no. Tell me in the comment box, please. क्या आप अपने बच्चे के लिए खुशियां खरीद सकते हैं?
बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चंस। मेरे सेशन में सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं पेरेंट्स को थोड़ा सा परेशान करता हूं। परेशान इस सेंस में नहीं, परेशान इस सेंस में क्योंकि मैं उनको सोचने को मजबूर करता हूं। राइट, यू कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। मैं उनको सोचने को मजबूर करता हूं। मैं आपको भी अभी मजबूर कर रहा हूं सोचने को, लेकिन परेशान मत होइएगा। ये जो सोचने को जो मैं मजबूर कर रहा हूं आपको, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। मैं आपको एक लेवल तक लेके जाना चाहता हूं जहां पे आप समझ लेंगे कि मैं क्या करूं कि मेरे बच्चे के साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी हो। इस वजह से मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं। सो बी विथ मी। आई एम विथ यू फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, राइट, एंड यू आर हियर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. So I'm going to tell you, I'm going to, make this bonding happen between you and your child. Just keep listening what I'm saying and stay till the end. Again, I'm saying you are going to get lots of surprises. Correct? Now tell me, ये जो secrets मैं बता रहा हूं, how much should it cost to you? बच्चे के साथ कनेक्शन बनाना, फीलिंग कैसे होना, एक रफ अमाउंट मुझे बताइए. जस्ट गिव मी अ रफ आइडिया कि ये सब जानने का क्या कॉस्ट होना चाहिए. एक रफ आइडिया फॉर अ कॉस्ट ऑफ टेलिंग यू व्हाट शुड बी यू डूइंग टू गेट योर चाइल्ड इमोशनली अटैच टू इट. उसका कोई कॉस्ट होता है ना, हर चीज का एक कॉस्ट होता है इस दुनिया में. एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट. नाउ टेल मी, इफ आई आस्क यू, इसकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए रफली एक कोई भी फिगर आप बोल दो, कोई भी फिगर बोल दो. इसके पीछे भी रीजन है व्हाई आई एम कमिंग टू दिस, राइट. सो somebody has written 10,000, somebody has written 50,000. Okay, somebody has written there cannot be any value. Yes, yeah, agree to it. I agree to everybody and anybody, right? क्योंकि ये चीजें ना, ये पैसे से तौली नहीं जा सकती, ना पैसे से खरीदी जा सकती है, ना पैसे से तौली जा सकती है. करेक्ट. चलो, I'll go to the next point. Secret number 3, how to balance in case of wins and defeats. क्या होता है, हम अपने बच्चे को हमेशा से विनर बनाना चाहते हैं. करेक्ट. हम अपने बच्चे को पहले दिन से चाहते हैं कि मेरा बच्चा हर चीज में सबसे बढ़िया हो. और I normally say that. This is my punchline as well. Every parent wish they had a super performer child always. But होता तो नहीं है ना. हर पेरेंट की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा हमेशा हर फील्ड में अच्छा हो, लेकिन होता नहीं है. क्यों नहीं होता, उसके पीछे भी रीजंस हैं. सो हाउ टू बैलेंस इन केस ऑफ विंस एंड डिफीट्स. क्या होता है, हम अपने बच्चे को जीतना तो सिखाते हैं कि बेटा ये कर लोगे तो तुम जीत जाओगे, ये कर लोगे तुम फर्स्ट कर जाओगे, ये कर लोगे तो फर्स्ट कर लोगे तो तुमको ये हो जाएगा. एंड वी कीप ऑन टॉकिंग लाइक दिस. बट क्या हम कभी उनको बताते हैं कि बेटा हार जाओ तो क्या करना है? टेल मी, क्या आपने अपने बच्चे को सिखाया है? यदि आपने सिखाया तो हैट्स ऑफ टू यू, सैल्यूट टू यू. बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स भूल जाते हैं ये बताना कि यदि बच्चा हार जाए तो उसको क्या करना है. एंड दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू अगेन, क्योंकि आज की डेट में आप देखेंगे ना, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं. जहां पे उनको 95% लाने की आदत है, जहां उनको गलती से 80% आ गया, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं. क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, मैंने ऐसा क्या कर दिया? सो you'll not feel, I have seen cases when children have gone into depression, they have taken suicidal attempts as well. क्यों? क्योंकि हमने उनको उस बैलेंस, इमोशंस को बैलेंस करना नहीं सिखाया. हमने बस यही सिखाया, बेटा जीतो, बेटा ये करोगे तो ये हो जाएगा. वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल दोज थिंग्स व्हिच इज गोइंग टू गिव हिम पॉजिटिव्स. दैट्स फेयरली इनफ ऑन योर पार्ट. बट ये बैलेंसिंग चीज भी आप ही तो सिखाएंगे. आप नहीं सिखाएंगे तो बच्चा कैसे सीखेगा? एंड दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. क्या होता है, जब बच्चे ना अचानक से डिफीट फेस करते हैं तो वो टूट जाते हैं, राइट? या देयर आर लॉट्स ऑफ अगेन कमेंट्स रिलेटेड टू दिस. ओके, आई अंडरस्टैंड, नो इश्यूज. तो आपको क्या करना है अपने बच्चों के साथ? अपने बच्चे को सिखाना है अपने घर में, राइट फ्रॉम योर होम. सी, कहते हैं ना, घर प्राथमिक पाठशाला होती है. योर होम इज द प्राइमरी
प्लेस फॉर लर्निंग ऑफ योर चाइल्ड, राइट? अपने घर से सिखाइए, उसके साथ कोई भी गेम खेल रहे हैं, वॉच इट, ऑब्जर्व हिम. यदि वो हारने के समय उसका मूड ऑफ हो जाता है तो ट्राई टू slowly and steadily tell him कि बेटा it's okay to lose as well, because when you lose then only you can start winning. Losing is one of the steps of winning. Tell him, teach him, and that you can do at your home. वहीं से शुरुआत आपको करनी है. You don't have to read 1,000 books and you don't have to do a course for that, right? Just to start doing it. लेकिन एक बार से नहीं होता. Again, it has been, you have to bring it in a practice. कैसे होगा? एक दिन में चीजें नहीं होती. Rome was not built in a day. और एक दिन में आप चाहेंगे कि सब कुछ हो जाए तो नहीं होता. You have to keep doing it continuously, persistently, right? आपको पर्पस के साथ करना है, विलिंगनेस के साथ करना है, आपको अपने बिहेवियर में थोड़े चेंजेस लाने हैं, और ये रोज करेंगे तब जाके बच्चे के दिमाग पे इंप्रेशन बनना शुरू होगा. एक बार में नहीं होता कुछ भी, right? Okay. So I'll move on to a few of the topics, what parents say. See, I'm very much active on social media, right? And people ask me several questions related to this, right? Now, I'll give you certain examples what people ask me and how I answer to them. There is a lady called Namisha, and she had asked me a topic that यदि बच्चे के पेरेंट्स में से दो में से एक यदि बच्चे को डांट रहा हो तो दूसरा को क्या करना चाहिए? क्या दूसरे को डांटना चाहिए, चुप रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? अगेन फॉर न्यूअर पेरेंट्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिएक्ट. उनको समझ में नहीं आता मुझे क्या करना है. सबसे पहले मैं तो ये कहूंगा कि ट्राई टू अवॉइड दिस सिचुएशन कि जहां पे बच्चे को डांटने की नौबत आए. लेकिन जो पेरेंट्स ने ये चीजें नहीं सीखी हैं, यदि उनके सामने ये चीज आ रही है कि बच्चे को डांटना पड़ रहा है, तो व्हाट शुड बी द अदर पेरेंट डू? तो मैंने उनको यही आंसर किया था कि बच्चे को जब एक बंदा डांट रहा होता है ना, मम्मी या पापा डांट रहे होते हैं, तो एक बंदे को चुप रहना चाहिए और उनको रूम बनाना चाहिए, जगह देनी चाहिए कि पापा ने डांटा तो लेट द चाइल्ड कम टू द मॉम एंड क्राई हियर कि पापा ने मुझे डांटा. ही शुड बी एबल टू एक्सप्रेस हिज सॉरोज, फीलिंग्स. यदि दोनों जगह दरवाजा आपने बंद कर दिया, पापा तो डांट रहे हैं, वो तो रोने नहीं दे रहे हैं आपको, डांट रहे हैं, आपको रोना आ रहा है, और यदि आपकी मम्मी भी आपको डांटने लगे और रोने का ऑप्शन ना दे, तो आप क्या होगे? आप अंदर अंदर रोएंगे, बच्चा अंदर अंदर रोएगा. सो इज इट गुड और बैड? इज वेरी बैड, राइट? तो आपको क्या करना चाहिए? लेट द चाइल्ड गिव अ स्पेस टू क्राई एंड देन ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड इफ द चाइल्ड हैज डन अ मिस्टेक. चलो पापा ने डांट दिया, कोई बात नहीं, पापा किस वजह से डांट रहे थे आपको, यू शुड लर्न दिस, दैट्स इट, खत्म. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. Okay, so this is one of the example. Few parents have asked me about पानी कैसा पीना चाहिए. See, आज के डेट में हम लोग जिस वातावरण में रह रहे हैं कि कुछ भी प्योर नहीं है, ना हवा प्योर है ना पानी प्योर है. मैंने उसके लिए भी गाइडलाइंस दी हैं कि यू शुड बी यूजिंग अल्कलाइन वाटर. अल्कलाइन वाटर क्या होता है? अगेन इट्स पेरेंट्स मस्ट बी नोइंग. आई नो आप लिटमस पेपर टेस्ट कर सकते हैं. ट्राई टू यूज अल्कलाइन वाटर बिकॉज दैट इज गुड फॉर हेल्थ. Okay, I'll not go deep into this. Now, अभी जो पैंडेमिक में चीजें चल रही थी, बच्चे अभी भी क्लासेस शुरू नहीं हुए हैं, ऑफलाइन घर में बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं. क्या होता है? बच्चे थक जाते हैं, बोर होते हैं, आंखों पे स्ट्रेन पड़ रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो मैंने उनको बताया था कि हर क्लास के बाद बच्चे को बोले कि थोड़ा सा घर के अंदर ही एक राउंड मार ले. बहुत छोटी सी चीज है. टेल हिम टू जॉग, ट्राई टू touch certain photographs which is there on one of the walls. थोड़ा सा जंप कर ले. So क्या होता है ना, जो बॉडी का सिस्टम है, the blood circulations become better and child becomes fresh. आंखों में थोड़ा सा पानी मार ले और थोड़ा सा घूम ले, एक ब्रेक ले ले, थोड़ा धूप में चला जाए यदि धूप आ रही है तो, because those things are very very important. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही वर्सेटाइल टॉपिक है ये पेरेंटिंग. हर चीज पेरेंट पूछते हैं और हर चीज मैं बताता हूं ना. किसी ने कहा था कि मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आपको सुबह का जो ब्रेकफास्ट है ब्रेक स्किप नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप रात को जब सोते हैं ना 10 घंटा 12 घंटा का टाइम हो जाता है. रात के 8-9 बजे यदि आप खा रहे हैं, फिर सुबह 9-10 बजे यदि ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, 12 घंटा का टाइम है. सो आफ्टर दैट 12 आवर्स योर बॉडी नीड्स लॉट्स ऑफ एनर्जी. सो यू शुड नॉट अलाउ योर चिल्ड्रन, नोबडी शुड इवन स्किप दैट ब्रेकफास्ट पार्ट. लेकिन आपको भी स्किप नहीं करनी है, बच्चों को भी स्किप नहीं कराना है. सो दिस इज अगेन
बहुत छोटी चीज है बट मेक सेंस. स्क्रीन टाइम, बच्चे concentrate नहीं कर पाते हैं. So I have answered all these questions in my social media, and if you join my social media networks, you will get all these things there as it is, right? So you have all those things. ये मैं कुछ जो मैंने आपको बताया है, out of thousands and thousands of chats मैंने थोड़े से यहाँ पे निकाल के दिए हैं. एक कहानी की बात कह रही हैं लेडी कॉल शुभ्रा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कृष्ण के जन्म की कहानी सुनाई थी, कृष्ण जी की. तो बच्चे कहानी से बहुत रिलेट करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है. व्हेन यू स्टार्ट टेलिंग स्टोरीज दे लव इट, करेक्ट? सो यू कैन टीच योर चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ स्टोरीज एज वेल. ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं. आई कैन कीप ऑन टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग, राइट? Somebody has asked, how do you explain your child about the difference between good sangat and bad sangat? Sangat means your community, a close group of friends wherein you talk, you play. तो वहां भी कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छे होते हैं, अच्छी चीजें सिखाते हैं. तो there are n number things. Somebody has asked me 10 से 15 साल के बच्चे और गार्जियन के बीच में कैसे आप कोऑर्डिनेशन बनवा सकते हो. So I have replied everything and I keep on doing it regularly. Okay, so these are few of the testimonials I would say, and based on all those things, there is something very, very beneficial for you. But before moving ahead, I'll first like to give you something free, which I'm gonna give you here. मैं सबसे पहले thank you करता हूँ for all those parents who have been listening to me. It's been around 1 hour now. आपको 1 hour कंप्लीट करने पे आई एम गोइंग टू गिव यू वन पर्टिकुलर थिंग विच यू कैन डाउनलोड. इट इज अ फ्री गाइड, एन इंटरनेशनल गाइड, जिसमें बताया गया हाउ चिल्ड्रन लर्न, राइट? सो आई विल शेयर यू दिस फाइल एंड आई विल अगेन शेयर यू माय सोशल मीडिया लिंक्स wherein you can go and click to register and get associated with me, wherein you'll be getting lots of insights about parenting tips and techniques, which is very regular. And I do it regularly, right? So I'll be sharing both the things. You download both the things, this social media links and that international guide in which it is being told that how children learn. बच्चे कैसे सीखते हैं. So download it and do go to my social media channels and register yourself as a part of the community, because there are n number of peoples like you on the same community wherein people are discussing, talking, they're giving suggestions, people are taking suggestions and they're trying a number of things. I'm also there wherein जहां पे मेरी जरूरत होती है मैं भी आके अपनी तरफ से कुछ बताना चाहता हूं, मैं बताता हूं. So you'll be directly going to be benefited. So this is one of the surprises which I had kept for you, for people. See, I always say जिनको जरूरत है वो समय देंगे, वो सीखेंगे, क्योंकि उनको अपने बच्चे में, अपने परिवार में खुशियां बढ़ानी है, करेक्ट? सो आई बिलीव यू मस्ट हैव डाउनलोडेड दिस 2 things, okay? And I'll move forward. Okay, fine. Now I'm going to give you certain packets from my side. Just keep listening to it. This is very important as well. Now, packet number one says the secrets to successful parenting, right? What are you going to get benefit out of this? First of all, you will be understanding yourself, right? अपने आप को जानना बहुत जरूरी है. जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे, आप दूसरे को कैसे जान सकते हैं? So I have made a module for you to understand yourself better, knowing your child better. जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे, बच्चे को नहीं जानेंगे, तब तक कहीं से शुरुआत हो ही नहीं सकती. एंड क्रिएटिंग अ फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट. बच्चे के साथ एक फाउंडेशन, आप एक नींव बनाएंगे ट्रस्ट का, तभी इस पे बात आगे बढ़ेगी. ओके, सो दिस इज पैकेट नंबर 1 which I'm gonna give you. This is worth 24,999, but wait, there are lots of surprises. Don't worry on the price part. You are going to get many surprises as I promised you. Just keep on watching. Okay. Now second packet is basic principles of child psychology, right? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं यहाँ पे ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूं. मैं आपको वही चीजें बताऊंगा
जो बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है आज के डेट में आपके लिए, है ना, एज ए पेरेंट। सो इस पर्टिकुलर पैकेट में मैं आपको बताने जा रहा हूं आपका जो फायदा है वो क्या है। चाइल्ड साइकोलॉजी का जो साइंस है वो आप समझेंगे, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए, तभी आप आगे एक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको इससे मिलेगा पैकेट नंबर 2 से। दूसरा, आपका जो चाइल्ड है, आपका जो बच्चा है, उसका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, इसके बारे में आप जानेंगे इस पैकेट के अंदर। और तीसरा, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट योर चाइल्ड वांट्स टू से। आपका बच्चा हो सकता है शब्दों में कुछ चीजें नहीं बोल पा रहा हो, लेकिन उसकी एक्टिविटीज, उसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होगा जो आपको बहुत सारे मैसेजेस देगा। ये आप कैसे समझ सकते हैं? दिस इज यू आर गोइंग टू गेट इन पैकेट नंबर 2। ओके, दिस इज व्हाट 799, 799, बट wait and keep waiting. I'm coming to it. Now third, packet number 3 is laws of parenting. What are the benefits which you are gonna get? You are going to understand the hidden facts of parenting. जो चीजें कुछ बोली नहीं जाती हैं, बस की जाती हैं और समझी जाती हैं, राइट? और उसके बाद टेकिंग एक्शंस नोइंगली। एक तो होता है कि अननोइंगली हम बहुत सारी चीजें करते हैं, कुछ गलत कुछ सही, लेकिन यदि आप उन चीजों को समझ लें तो आप नोइंगली उन चीजों को करेंगे। एंड बाय डूइंग दिस यू विल बी क्रिएटिंग अ पिलर ऑफ ट्रस्ट। एक पिलर बनेगा, न्यू आपने डाल दिया है पहले ही हमारे पैकेट नंबर 1 में, उसके बाद आप एक पिलर बना रहे हैं, आप एक महल बना रहे हैं जिसकी न्यू ऑलरेडी आपने डाल रखी है। अब आपको उस पर दीवार बनाना है, पिलर्स बनाना है, उसके बाद दीवार बनाना है। सो दिस इज गोइंग टू क्रिएट पिलर्स फॉर यू। नाउ जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दिस इज पैकेट नंबर 4 इन विच आई एम गोइंग टू टेल यू अ गाइड टू पेरेंटिंग एरर्स एंड देयर सॉल्यूशंस, राइट? नॉर्मल पेरेंट्स क्या गलतियां करते हैं और उसका क्या सोल्यूशन होता है। मैंने 2-3 एग्जांपल्स आपको दिए, ये उससे भरा होगा। और इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट नंबर 1, आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सी, इट्स लाइक कम्युनिकेशन, वन इज अ वर्बल कम्युनिकेशन, वन इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दोनों चीजें आप इसमें सीखेंगे, राइट? यू विल बी एबल टू चेंज द वे एंड अप्रोच। आपको अपना तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। देखिए, आपका बच्चा है, आपको अपने बच्चे के बारे में अच्छा करना है, उसके लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो वी एज अ पेरेंट शुड नॉट हेजिटेट डूइंग इट। एम आई राइट? राइट? एंड इन दिस यू विल बी क्रिएटिंग वॉल ऑफ ट्रस्ट। जो मैंने बोला, आपने न्यू बिछा दी है, आपने पिलर्स बना दिया, अब आपको दीवार बनाना है, तभी जाके घर तैयार होगा, एक महल तैयार होएगा। और उस महल, जिस महल की मैं बात कर रहा हूं, एक प्यारा सा महल होगा जिसमें खुशियां ही खुशियां होंगी। ठीक है? नाउ कमिंग टू पैकेट नंबर 5, दिस पैकेट इज गोइंग टू टॉक अबाउट द टीन्स बिहेवियर। दिस इज द जेन नेक्स्ट गाइड टू टीन पेरेंटिंग। जिनके बच्चे टीनेजर हो गए हैं या होने वाले हैं, कहने को 13 होता है, लेकिन आज के डेट में बच्चे 10 साल की उम्र से इन सब चीजों को फेस करते हैं। पेरेंट्स चूंकि ये फेस करते हैं तो ये उन सब के लिए है, करेक्ट? इसमें आप क्या सीखेंगे? यू विल अंडरस्टैंड टीन्स बिहेवियर। टीन्स बिहेवियर और उसके पहले का एडोलसेंस बिहेवियर में बहुत फर्क होता है, आपको वो समझना पड़ेगा। ब्रिंगिंग योर टीन टू योर कोर्ट। आपको बच्चे के अपने कोर्ट में लेके आना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा? एंड अगेन ओपनिंग डोर्स ऑफ ट्रस्ट। आपने घर बना लिया, दरवाजे लगा लिए, तो दरवाजा खोलना भी तो पड़ेगा। सो दिस गाइड विल टेल यू हाउ यू आर गोइंग टू ओपन द डोर्स ऑफ ट्रस्ट। ओके, now this is a very very important thing that is which I'm going to talk about it, the 6 Sigma rule of parenting. If you want to know about 6 Sigma, what is it, you can go and search on Google. This is actually a quality tool. 6 Sigma is called standard deviation. So I'm not going to tell about all those mathematical formula and all. इसमें ये बताता है और आपको क्या फायदा होने वाला है कि आप अपना चैलेंज डिफाइन कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, राइट? और उसको इंप्रूव और कंट्रोल कर सकते हैं। आप एक पर्टिकुलर बिहेवियर को यदि चेंज करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपका फोकस रहेगा, एंड यू कैन डू दैट थ्रू दिस पर्टिकुलर 6 Sigma rule of parenting. This is worth 14,999, but again, as I said, wait, don't look on the prices as of now. I'm going to give you lots of surprises. Again, packet number 7. This is going to be a creative workbook
which is going to be an activity bundle for your kids. See, एक्टिविटी क्यों है? कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है. हम सब अपने बच्चों के बारे में कहते हैं. इवन हम बड़े भी यदि खाली रहें तो कुछ ना कुछ खुराफात दिमाग में आता है. So you have to keep your children busy, active, and in a positive way, right? So benefits of this particular packet is you are going to do that. Your children are going to do activities which would keep them busy and dynamic, activities which would make them creative, and activities to make them physically as well as mentally with you. My purpose is you to connect with your child, right? So this is again worth 2,999, but wait, as I told you, don't worry. Now, this entire bundle which I explained you is a bundle offer for today, right? So this offer, if you include everything, all the prices which I showed you, the total value is 82,993, 82,993, which I am giving you today as a special price at 5,999 plus GST, right? Which comes out to 7,079, right? So this is a special price for today only. But wait, as I told you, wait. Again, it is being followed by so many other things. Just wait. This is surprise number 1. I've already given you all the 2 surprises, which is there in your inbox now, but this is as a special price for today. Okay. Now let me come to another surprise for you. Just hold on. Okay. Now people who are going to be the action takers and the fast action takers are going to get these bonuses, free bonuses in terms of 60-minute counseling with experts. Now I have 2 experts here. One by the name of Mr. Dheeraj Srivastava. He is the founder of Pathshala Club, and he is an expert doing his work tremendously well for last 12 years. He is into communication skill and personality development. And if you want, you can talk to him for free 60 minutes about your child, and he'll guide you what to do next if your child is weak in communication or you want him to be developed in a better personality one, right? Now, number 2, Mr. Shwet Chandan from First Vidya. He's an expert in coding and robotics for kids, and he's a pass out from IISc Bangalore, one of the top premium institutes of India, and he has been Stone Brook University in US, and he is teaching and guiding the children in terms of knowing their capabilities to understand what is coding and what is robotics. So if you compare him with Byju's and White Jar Jr., his cost is tremendously low, and he is in person interacting with every child. So you can have free 60-minute counseling with these 2 experts. Wait, the things are not yet over. For the people who are going to take actions, now another offer, which is a complimentary bonus from my side. The program which as defined, as I told you, that is for 28 days. But I'm going to give you a free 1 year free access to this course, right? So don't worry. If you are by any reason not able to do it, I'm there to do it, and I'll tell you how I'm going to do it, right? And along with that, you will be given 52 weekly trainings. That is entirely free. And what I'm going to do it, I'll tell you. मैंने आपको बोला ही ना कि ये चीजें मैं आपको थियरी पढ़ाने वाला नहीं हूं, ठीक है? मैं आपको इसमें फन बेस्ड एक्टिविटीज लर्निंग करा रहा हूं. तो आपको क्या करना होगा, जो असाइनमेंट मैं आपको दूंगा वो असाइनमेंट आपको करना पड़ेगा और आपको मेरे सोशल मीडिया चैनल पे डालना पड़ेगा एज अ पार्ट दैट यू आर डूइंग, यू आर एक्टिंग ऑन इट. देखिए, पेरेंट आप है, मैं आपको बता दूंगा, और यदि आप नहीं करेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा, राइट? डॉक्टर के पास आप जाएं और दवा लेके दवा ना खाएं तो फायदा नहीं होता. आप जिम में जाएं और एक्सरसाइज ना करें तो फायदा नहीं होगा. सिमिलरली, यदि आप चीजों को समझ रहे हैं, आपको लगता है कि ये फायदा होने वाला है, तो आपको उस पर एक्ट करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा उसके लिए. और ये काम इतना मजेदार होने वाला है कि आप पूछिए मत. ये काम, जो भी असाइनमेंट है, आपको अकेले नहीं करना है, आपको अपने स्पाउस और बच्चे के साथ बैठ के करना है. So I'm forcing you to sit with your child and do certain activities which is going to create wonders for you. Don't worry at all.
इतना मजा आने वाला है कि आप कहेंगे कि मुझे और करना है। और ये चीजें आपको मुझ तक नहीं पहुंचानी है, आपको अपने सारे ग्रुप मेंबर्स तक पहुंचानी है कि आपने क्या किया। The moment people see you acting, people will start acting. The moment you say that I'm getting benefited, they are also seeing it and they'll also start acting on it. And they'll ask you questions. आपने कैसे कर लिया, मुझे भी बताओ ना। And it will happen. Don't worry at all. तो ये 52 हफ्ता, हर हफ्ता मैं आपके साथ लाइव आऊंगा, आपके प्रोग्रेस के बारे में पूछूंगा, आपको कुछ अलग तरीके बताऊंगा ताकि आप उन चीजों को अच्छे से कर पाए और आपको फायदा मिले। See, I'm here to make it happen. Trust me, I'm here to make it happen. I'm not going to just, give you and go away. No way. No way. मैं आपके साथ तब तक टिका रहूंगा जब तक आप ये नहीं कह दें कि हाँ मुझे फायदा हुआ, अब मैं अपने बच्चे के साथ बहुत मजे कर रहा हूं। This is my promise to you. Okay? Now, I'm not stopping here. Now, I have certain special bonuses, special bonuses, right? Now, we are in a community of experts wherein few people are expert in a very particular domain. Now, I have Mr. Mahendra Thakur. He is into parenting for quite a long time. He was a corporate trainer as well. उन्होंने एक पैकेज बनाया है जिसमें वो P3 ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। P3 is पर्सनल, प्रोफेशनल एंड पेरेंटिंग। कई बार पर्सनल और प्रोफेशनल चीजों को बैलेंस करते करते बच्चे छूट जाते हैं, पेरेंटिंग अधूरी रह जाती है। सो दिस पर्टिकुलर पैकेज ऑफ हिज इज गोइंग टू बी एंटायरली फ्री। इट्स गोइंग टू बी एंटायरली फ्री फॉर यू, करेक्ट? सो दिस इज एन एडिशनल बोनस। कम अगेन, वी हैव a super lady, Miss Ruby Wadhwa, who is a storyteller, and she is a matured lady, and she has been teaching children for more than 25 years, I would say. And उन्होंने एक पैकेज तैयार किया जिसमें she is telling 10 cognitive activities to make your child intelligent. Do you want to make your child intelligent? Say yes or no. Obviously, you want your child to be intelligent. But again, there are smaller things. She is a specialist in cognitive skills, and she'll tell you certain activities wherein your children are going to be benefited. They are going to be more intelligent, right? So this is again entirely free. Whoever is going to take actions today. Okay. And this is one of the precious gems, I would say. Miss Kaneez Fatima, she is an expert in parenting as well, but she has a certain domain of, controlling the anger. So she is an expert in anger management, right? She had an experience of more than 20 years again. She looks very simple, but her classes are marvelous, and you'll know how to act in front of your child to control the anger. The बच्चा गुस्सा करके आता है तो आपको क्या करना है यार? आप गुस्सा कर रहे हैं और बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है उसको समझना है. So she is there for you. Okay. So friends and parents, I'll show you, this is an offer which is very, very irresistible, I would say. And for this, I'm going to give you a special offer. You can go here and make your deal happen just by clicking on this link. So you'll find that this particular bundle is going to give you lots of things which you have not even thought of. This is a very, very specially designed package, and trust me, I'm going to be with you unless and until you get the benefit out of it. This is my promise to you. People have been benefited. I've told you there are n number of people who got benefited out of this program, and there are certain testimonials as well which I can share with you. But this particular program is specially designed for you to bring your child, you and your child, very close to your hearts. So this offer is valid for 20 minutes. Please make this happen, because you are a part of my family and I'm going to be one of the members of your family, wherein I'll be forcing you to make connections to your children's heart. बच्चा तो आपका है ही, आप उसको प्यार करते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. लेकिन आपका प्यार उस बच्चे तक नहीं पहुंच पा रहा है,
उसके लिए मैं कुछ फन एक्टिविटीज के तौर पे ये कोर्सेज आपके लिए डिजाइन किए हुए हैं. इफ यू स्टार्ट डूइंग इट, यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड इन 28 डेज टाइम. और मैं 28 डेज तो दूर की बात है, मैं कहता हूं आपको सप्ताह 10 दिन में आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा. दिस इज माई प्रॉमिस टू यू. You'll start seeing that difference in you, because you are going to create that difference, as I told you. Okay, so now I'll start with question answer session. If you have any questions, I'm here to tell you. Please go ahead and type in your questions in the chat box. I'll answer one by one. Please type in your questions. I'll answer here. So somebody has asked me, how much time should I give for this program? See, बच्चा आपका है और आपको उसके साथ बॉन्डिंग बनानी है. मैंने तो बस एक आपके लिए कुछ टूल्स लेकर के आया हूं, उस टूल्स को आपको यूज करना है. यदि मैं टाइम की बात करूं तो यदि आप उस टूल्स के साथ जुड़े रहेंगे तो 1 घंटा सफिशिएंट है. 45 minutes to 1 hour इज सफिशिएंट फॉर यू. लेकिन आप खुद समझिए ना, आप अपने बच्चे के साथ जितना टाइम देंगे उतना उसके लिए अच्छा होगा. बट टाइम कैसे देना है, यदि उस टूल के थ्रू जाएंगे तो आपको मजा भी आएगा और आपका बच्चा आपके क्लोज आना और शुरू होगा. राइट, सो टाइम की कोई दिक्कत की बात नहीं है. 45 minutes to 1 hour is sufficient from my perspective, but I recommend you to spend more quality time with your children. Okay, children quarrel very often. How to deal? देखिए, बच्चे लड़ाई झगड़ा तो करते हैं, ये हमने देखा है. क्यों करते हैं? छोटी छोटी चीजें होती हैं. तुमने ये कह दिया, तुमने ये कर दिया. आपको कुछ नहीं करना है. लेट देम प्ले द वे दे आर प्लेइंग. दे आर नॉट क्वारलिंग. आई वुड से दे आर नॉट फाइटिंग. दे डोंट इंटेंशंस टू हर्ट. अंडरस्टैंड? उनको कोई, मान लीजिए 2 बच्चे हैं आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो उनका इंटेंशन लड़ना नहीं होता. देयर इंटेंशन इज इन्वॉल्वमेंट. वो दोनों के साथ लगे होते हैं. राइट, तो इसमें उनको बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई फिजिकल डैमेज ना हो, कोई इमोशनल डैमेज ना हो, कोई गंदे वर्ड्स ना हो. एंड लेट देम डू व्हाटएवर दे आर डूइंग. इवन आई हैव माय ओन चिल्ड्रन जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं. ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. वो लड़ना झगड़ना नहीं, एक्चुअली में वो प्यार है जो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को. यदि मैं अपने दोस्त को प्यार करता हूं, मैं जाके के उसके कंधे पे एक मुक्का मारता हूं, that doesn't mean that I want to, hurt him. I just want to show my love and affection in a different way. So I think I've answered your question. They are not quarreling, mind it. They are not quarreling. They are not fighting. They are just expressing themselves in a different way, which we have tagged as quarrel or fight. Right? So they're not fighting. Don't worry. बस उतना ध्यान रखना है. आप उनको समझा सकते हो कि बच्चे कर रहे हो, चोट नहीं लगना चाहिए किसी को, और कोई चीज घर में तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए. आप करो, पिलो फाइटिंग करना है करो, कोई बात नहीं है, बट चोट ना लगे. ओके, एनी मोर क्वेश्चन? ओके. किसी ने मुझसे पूछा था कि मेरे पास ऐसे कुछ केस स्टडीज भी हैं जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूं. एक पेरेंट ने मेरे को फोन किया एंड शी वाज आस्किंग कि मेरा जो बच्चा है वो मेरे से बहुत नेगोशिएट करता है. नेगोशिएट इन द सेंस कि वो कहता है कि आप मेरे को पढ़ने के लिए बोलिएगा 1 घंटा तो मैं 2 घंटा खेलूंगा. तो मैंने उनको यही समझाया कि बच्चे आज की डेट में बहुत स्मार्ट हैं. हर जनरेशन अपने पिछले वाले जनरेशन से बहुत स्मार्ट और बहुत फास्ट होता है. आपको उनके पेस के साथ चलना है, समझना वो करना क्या चाहते हैं. तो वो आपसे टाइम बाई कर रहा है, वो आपको नेगोशिएट कर रहा है कि आप उसको दोबारा मत बोलो पढ़ने के लिए. सो इन स्पाइट ऑफ योर चिल्ड्रन empowering you and guiding you, you should be in the driving seat and guiding them what to do. Right? Somebody has written how to manage distraction from studies at the age of 16. See, Mr. Singh, thank you for this question. Very genuine question. बच्चा जब, मैं तो 16 की आप बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ टीनेज 13 से लोग कहते हैं शुरू होता है. आज की डेट में वो 10 से शुरू हो गया है. बच्चे बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं. डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं आज की डेट में.
बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं आज के डेट में. रीजन बीइंग आपका सोशल मीडिया, मोबाइल, और जब से पैंडेमिक हुआ है सब घर में बैठे हुए हैं. द एंटायर थिंग्स हैव गॉन ऑनलाइन. अब डिस्ट्रैक्शंस कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स, राइट? दोस्त यारों से डिस्ट्रैक्शन होता है, और फ्रेंड्स फैमिलीज में भी डिस्ट्रैक्शंस होता है. आपको डिस्ट्रैक्शंस यदि स्टडीज से हटाना है तो उसके लिए बहुत सिंपल 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा. पहला, सबसे पहले एक रूटीन बना दीजिए, एंड दैट रूटीन शुड बी वर्केबल. वर्केबल का मतलब, आप जैसे जाड़े का दिन है, आप यदि रूटीन बना देते हैं कि बच्चा 5 बजे उठेगा, मुझे ख्याल से वो सही नहीं होगा. मेक इट प्रैक्टिकल सो दैट बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना हो. एक जेन्युइन रूटीन बनाइए जो वो फॉलो कर सकता है, राइट? उसका जब यदि रूटीन से फॉलो करना शुरू कर देगा तो उसके पास सबसे पहले टाइम नहीं होगा, राइट? जब टाइम नहीं होगा तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा. यदि आप डिस्ट्रैक्शन मोबाइल और सोशल मीडिया के लिए कह रहे हैं, उसके लिए भी एक टाइम अलॉट कर दीजिए. गिव हिम अ टाइम कि ओके, इफ यू वांट टू गेट कनेक्टेड टू योर पीयर ग्रुप, बिकॉज 16 साल का बच्चा है तो उसके फ्रेंड्स भी कई सारे होंगे, व्हाट्सएप और फेसबुक पे चैटिंग वगैरह चलती रहती है. दैट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड. लेकिन उसके लिए टाइम डिफाइन कर दीजिए. डोंट अलाउ हिम और हर to be there all the time on the mobile, right? Okay, so you make a routine and it will happen, don't worry. And you know, be by them, by their sides. उनके साथ बातचीत करते रहें, समझते रहें क्या चल रहा है उनके साथ. यदि कहीं कोई दिक्कत है, if you want to solve them, do it, it will happen. No worries. Okay, I hope I have answered, Mr. Singh. So this routine is very much important. That routine has to be followed in a disciplined way as well. और आपको फॉलो भी करवाना है. देखिए, बड़े बच्चों को आप ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते, बट यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ मेकिंग इट हैपन. यदि आप बोलते हैं कि यदि आप फॉलो करोगे तो आपको उनको कन्विंस भी करना पड़ेगा कि ऐसे करने से क्या होगा. इफ यू आर वेस्टिंग टाइम, डू इट सो दैट योर टाइम इज यूटिलाइज्ड. Can you please come on the main screen for what? I don't understand. Main screen. Okay. Fine. So, now I'm here with you. Okay. If I can answer any more questions. Any more questions if I have, I can answer to that. See, teen parenting is very different from normal parenting, Mr. Singh, I would say. बहुत सारे लोग परेशान हैं इन सब चीजों से, बिकॉज उनको समझ नहीं आता कि करना क्या चाहिए. So again, the guidance which is there in this form of a particular smaller course in 28 days, you'll come to know so many things. So these are all research based. It's not that somebody is saying and somebody is listening to it. There is a lot of research across the world. Parenting is a topic which is very less spoke in India as of now. बाहर के देशों में people are very much serious about it, and people do lots of things for making their parenting journey a happy and successful one, and they do lots of efforts for that. हमारे इंडिया में people take it for granted. ऐसा नहीं होना चाहिए. So that is the problem, and we need to, as a parents, we need to understand those things, challenges, and we need to come forward. Okay, so that हम इनजस्टिस नहीं करें अपने बच्चों के साथ. हमने बच्चों को अपने इस जमीन पे लाए हैं, इस धरती पे लाए हैं, तो उनको उनका जो शेयर ऑफ लव, अफेक्शन, वो सब मिलना चाहिए. उनको सारी चीजें मिलनी चाहिए. वो तभी होगा जब हम अपने एक्ट्स में थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे, अपने एक्टिविटीज में थोड़ा सा चेंज लाएंगे. एंड इट इज वेरी सिंपल, एंड आई हैव मेड इट इवन सिंपलर. आई विल टेल यू. मैं हमेशा क्या कहता हूं, fun-based learning. I'm not saying to write a essay of 500 words and submit me as a homework. No, not at all. What I'm saying, do some activities, and those activities are research-based. क्या करने से क्या outcome होगा, that I know. अभी मैं आपको बता नहीं सकता. I'll just make you do that. So once you start doing it, you'll feel the difference. Trust me, you'll feel the difference. Why I'm talking again and again and again? Because कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम करने के बाद ही समझ पाते हैं. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं. हम अपने बच्चे को एग्जांपल देते हैं ना, कि कहते हैं आग में दिया जल रहा है, उंगली मत करो, जल जाएगा. बच्चा फिर भी उंगली लगाता है, जलता है तो उसको महसूस होता है, राइट? सो यू लर्न बाय डूइंग.
And I believe in this. You learn by doing. Start doing it, start learning it. And the more you do it, the more you learn, it will be imbibed in your system. आपके मन में वो चीजें बैठ जाएंगी और आप ट्यून हो जाओगे इसी फॉर्म में करने के लिए, राइट? जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, आप कार चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, क्या होता है जब तक आप सीख रहे थे आप बहुत कॉन्शियस होते हैं, क्लच, ब्रेक, एक्सेलेरेटर, आप स्टीयरिंग बहुत कॉन्सिस्टेंटली देखते हैं सड़क पे, कहीं इधर उधर तो कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप क्या कहते हैं, आपका पैर, आपका हाथ, आपकी आंखें, आपका माइंड सब ऑटोमेटिकली सिंक में आ जाता है, ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी ड्राइव होती है, आपको क्लच, ब्रेक, एक्सेलेरेटर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। Am I right? Am I making sense? So we are almost done. It's almost 5 o'clock. 190 minutes are over now. So if I can take some more questions, see, I can keep on talking about, but there are times I value your time as well. मैंने शुरू में ही कहा था कि ये वेबिनार फ्री है, आपका टाइम फ्री नहीं है. So if you want to make the best out of this, please get into your learning mode. Open your learning mode. Be in a learning mode to learn more and teach more. This is all about you and your family. Trust me, it's you, your child, your family. The entire family is going to get benefited. सिर्फ एक आदमी नहीं फायदा होगा. यदि पूरा परिवार हंसता खेलता रहो तो I'll be the most happiest person to see your family smiling and enjoying your lives. So that is my promise to you, and that is how this course has been designed. Okay. So any more questions if I can take? And see, I keep on doing webinars. I'm very much focused about it. I want to bring that change in the society. My last, before it's almost over, I have few minutes left. Okay. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज के डेट में हम सब परेशान हैं. क्यों? Our children are not safe, especially the female child. हमारी बेटियां, घर की बहू बेटियां सेफ नहीं हैं. क्यों सेफ नहीं है? क्योंकि किसी घर में किसी लड़कों को वो चीजें सिखाई नहीं गई हैं कि बहू बेटियों की इज्जत करो, लड़कियों की इज्जत करो. Am I right? If you connect to me, please. आप बताइए क्या ये सही नहीं है कि एक ऐसा समय आया कि हम अपने आप से कहें कि नहीं, अब हम सेफ हैं, हमारे बच्चे सेफ हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है. मैं महसूस करता हूं उन पेरेंट्स का दर्द जिनकी बेटियां भी स्कूल भी जाती हैं, कॉलेज भी जाती हैं, तो दे आर फीलिंग सो स्कैर्ड कि पता नहीं हमारे बच्चे जब तक आ नहीं जाते उनको डर लगा रहता है. आई प्रे टू गॉड दैट नो चाइल्ड इज हर्ट इन एनी वे, बट ऐसा हो रहा है हमारे समाज में. उसके पीछे रीजन यही है कि हमने अपने बच्चों को सिखाया नहीं है. सिमिलर गोज विद द गर्ल चाइल्ड. यदि कोई लड़की गलत करती है शादी के बाद या शादी के पहले किसी के साथ, again we have to teach them that this is wrong, you don't have to do it. So the moment you start doing it, you will create a difference in your family, your society, and overall the entire societies, state, country, world, whatever you say. This is a movement. I say this is a movement wherein you have to start from your own house and see the difference. आज आप अपने लिए करेंगे, कल ऑटोमेटिकली आपके लिए हो रहा है वो कहीं ना कहीं, राइट? यदि आज मैं अपने बच्चे को सिखाता हूं तो कहीं ना कहीं यदि मेरा बच्चा एक अच्छी चीज सीखता है तो उसका इफेक्ट दूसरे बच्चे पे भी पड़ेगा. एंड समवेयर सम चाइल्ड इज बीइंग प्रोटेक्टेड. थिंक इन दैट वे. बहुत ही बड़ी चीज है ये, एक मूवमेंट है. मैं हमेशा कहता हूं दिस इज अ मूवमेंट. प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट. यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ इनसाइट्स. You are going to create that change. And trust me, see, I believe in this philosophy of creating the world. And the start has to happen within you. You are going to be the change. Listen and trust. You are going to be the change. Start doing it. Start doing from now. And you will see the difference. Trust me, I have done it for lots of people. And that is why I'm so much confident about me. I analyze things in a different way. And the moment I analyze that this is the required thing which every parent should have done for their children, their family, their society, and the entire world, I started doing it. And I have a long story. Today, I missed to tell you my story of coming into parenting. But I keep on, someday I'll share my story as well. Because I have lots of things to share. I cannot share in a smaller period of time. So I cut short my fewer of the parts, and I took you to the entire journey which I had planned.
and I had planned lots of surprises which you have seen it. This is very unique, and you trust me, you're not gonna get anything anywhere. Trust me. Next time also I'll be adding some maybe some more surprises for you. But this entire package is designed in such a way that you are going to get benefit from day one. That is my guarantee to you. And you love doing it. The best part is it will not be a burden on you. You will love doing all those activities on your own. Right? And when you are responsible for doing certain activities, posting in the groups, you will feel that you are creating difference to others as well. So it is multiplying. It is going exponentially. Right? Okay, thank you very much. Thank you so much for attending this session. I believe I have added value to your time, and I also believe that whatever I have promised, I have delivered. And once again, thank you for being a conscious and life parent. I always say, because you are going to create that change. So thank you for being with me. See you in my next webinar. If you want to join, things will rolling up in different social media channels. So keep watching me. If you join my groups, you'll be getting all those updates automatically. So you can join my Telegram group as well, Facebook, and all those things are there. So you can keep interacting with me behind the scene as well. So thank you very much. Thank you all for your time and good luck. Thank you. Happy parenting.